और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से निर्यात होने वाले चावल पर नए टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने अमेरिका के किसानों के लिए $12 अरब के मदद पैकेज की घोषणा करते समय ये संकेत दिए हैं। अमेरिकी किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने ट्रंप से शिकायत की थी कि भारत और दूसरे देशों से आने वाले चावल की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है और इसके बाद ट्रंप अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए टैरिफ तो देना होगा। फिलहाल अमेरिका ने भारतीय चावलों पर 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी लगा रखी है। अगर नए टैरिफ लगे तो ये लिमिट 50% को पार कर जाएगी। And we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for U.S. rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. So this has been happening for years. This didn't start during your administration, but unfortunately we're seeing it in a much bigger way now. The tariffs are working, but we need to double down because you want more. I mean, well, they're cheating, right? They're they're just subsidizing and then India. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. There's a WTO case against India now. Give me the countries if you could. Go ahead. India, who else? So India, mark it down. What's your skin? yes, sir. India, Thailand, China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. Those are the main culprits. और इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के बाद अब हालात सुधर रहे हैं। हालांकि सोमवार को भी 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। पिछले 7 दिनों में करीब 4000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया और यात्रियों को इसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और सीओ समेत टॉप मैनेजमेंट को आज तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक डीजीसीए द्वारा गठित 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी ने इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान इंडिगो के अधिकारियों से पिछले 7 दिनों में रद्द हुई 4000 से ज्यादा फ्लाइटों के संबंध में सवाल जवाब किए गए। वहीं इंडिगो ने अब तक 827 करोड़ रुपए रिफंड किए हैं और अपने जवाब के साथ इंडिगो ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है, लेकिन एयरपोर्ट पर अब भी लगेज का अंबार लगा है। इस बीच लोकसभा में इंडिगो संकट पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि इंडिगो फ्लाइट में रुकावट और देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर लोगों को हो रही परेशानी के बाद सरकार क्या कर रही है। वहीं राज्यसभा में सिविल एविएशन मिनिस्टर ने साफ किया है कि सभी को नियम मानने होंगे और आज मंत्री राम मोहन नायडू लोकसभा में बयान देंगे। There have been a lot of internal complications. This is a day-to-day operations thing that the Indigo should have maintained. Indigo was supposed to manage the crew, was supposed to manage the roster through its day-to-day operations. We are there to check if the FDTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on that side. And for one thorough full month, we have been observing. On 1st of December, we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. Let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry, and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence, for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज राज्यसभा में भी चर्चा होने जा रही है। कल लोकसभा में इस पर बहस हुई थी। आज दोपहर 1 बजे गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि चर्चा का समापन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोलेंगे। सोमवार को लोकसभा में बहस के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के टुकड़े करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम पर बहस देश के असली मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। मोदी जी का अपने भाषण में ही कहना
कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी वंदे मातरम को लेकर घमासान देखने को मिलेगा। लोकसभा में पीएम मोदी ने सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभाला, तो आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विपक्ष पर तीखे शब्दबाण चलाते दिखेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के टुकड़े करने का आरोप लगाया। पीएम ने लोकसभा में कहा कि जो वंदे मातरम हर भारतीयों के दिल में देश प्रेम की लौ जलाता था, जो वंदे मातरम देश की एकता का मूल मंत्र था, उस वंदे मातरम को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पंडित नेहरू ने काट छांट दिया। और इसके पीछे भाव वही है, वंदे मातरम। आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस पर करारा वार किया और कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने ही देश का विभाजन कराया और आजादी के बाद सांप्रदायिक एकता को कमजोर किया। वंदे मातरम के साथ हुआ अन्याय एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, यह तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी जिसे कांग्रेस ने अपनाया। इसी राजनीति ने देश का विभाजन कराया और आजादी के बाद सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को कमजोर किया। पीएम मोदी के हमले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका ने कहा कि वंदे मातरम पर आज इसलिए बहस हो रही है क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों का ध्यान देश के असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर
एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वंदे मातरम गीत को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को जोड़ा, बीजेपी उसी से देश को तोड़ना चाहती है। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। वंदे मातरम गीत के बहस के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। आज भी राज्यसभा में दोनों पक्षों के बीच वार पलटवार देखने को मिलेगा। और लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। इस चर्चा में कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त रखा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को इस पर जवाब देंगे। बहस के दौरान विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया, वोट चोरी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव सुधारों का मुद्दा उठा सकता है। इसलिए इस मामले में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। बीते कई महीनों से राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाकर हमलावर रहे हैं। इससे पहले एसआईआर को लेकर विपक्ष के कड़े विरोध की वजह से लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई थी, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सरकार चुनाव सुधारों पर बहस के लिए तैयार है। और इसके बाद बीएससी की बैठक हुई है, जिसमें इस पर चर्चा के लिए 9 दिसंबर यानी कि आज की तारीख तय की गई थी। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्जवल रमन सिंह, ईशा खान चौधरी, मल्लू रवि, इमरान मसूद, गोवाल पाडवी और ज्योति मनी होंगे शामिल। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। पिछले कई दिनों से यूपी पुलिस शहर वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है और इसी सर्वे के दौरान मेरठ में करीब 6500 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है, जिनमें 3200 लोगों को लेकर गंभीर शंकाएं हैं। जिन लोगों के अवैध रूप से रहने का या घुसपैठिया होने की पुष्टि होगी, उनके लिए सरकार ने डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर मेरठ प्रशासन ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है और वहां 500 की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर जल्द बनाया जाएगा। और इसी तरह से मुजफ्फरनगर और वाराणसी में भी पुलिस ने तेजी के साथ वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और प्रशासन झुग्गी झोपड़ियों में टॉर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान रात के अंधेरे में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस ने सभी के आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज चेक करने के साथ ये सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है कि ये कहीं पर अवैध घुसपैठिए तो नहीं है। देखिए, अस्थायी डिटेंशन सेंटर के बनाने के संबंध में नगर निगम के द्वारा जगह की तलाश की जा रही है और कुछ जगह को हम लोगों ने देखा भी है जिसमें कि अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जा सकता है। अभी उनका सर्च जो है पुलिस विभाग और नगर निगम के द्वारा की जा रही है। जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी वैसे ही हम डिटेंशन सेंटर को चालू कराएंगे। वहाँ पे समस्त प्रकार की व्यवस्था जो शासन का आदेश है उसके अनुरूप हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। अच्छा, मेरठ में सत्यापन का कार्य चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रह रहे थे, वो चले गए जब सत्यापन हो रहा है। ऐसे कितने लोग होंगे? देखिए, वो एग्जैक्ट संख्या चूंकि अभी पुलिस विभाग ने सबमिट नहीं किया है या नगर निगम ने, तो मैं नहीं बता सकता। जैसे ही आ जाएगा उस तरह हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लेंगे।